Good morning, students. Today I am going to discuss about the method of preparation of aldehyde ketones from alkynes, halides, and alcohols. So first of all, let us take up from alkyne, and for same number of carbons, hydrolysis is carried out. And for hydrolysis, in addition to water and H2SO4, we have to use mercuric sulfate. I have already explained in the plus 1 plus. This is the basic difference. In case of alkene, water and acid is required, but in case of alkyne, in addition to water H2SO4, mercuric sulfate is required because of reactivity relativity is less, and water dissociates as H and OH. This carbon, hydrogen is attached to this carbon and OH to this carbon, and we get enols. Enols are very unstable. En and O, they undergo rearrangement. That is double bond shift to this direction and proton in the opposite direction. We get acetaldehyde. As a result, the conversion becomes ethyne changes to ethanol or acetylene changes to acetaldehyde. Now, in case of methyl acetylene or propyne, same reagent is used, but this is unsymmetrical. As a result, addition takes place as per Markov rule. So, negative part goes to that carbon which carries lesser number of hydrogen. Means OH goes attached to middle carbon and H goes to terminal position. But here again we get enol, which is unstable, and this is being unstable, this undergoes rearrangement. H on this direction, double bond in the direction, acetone. So methyl acetylene to acetone or propyne changes to propanone. But if in the examination you are required to convert propyne to propanol or methyl acetylene to propionaldehyde, in this way you will get ketone. So what we do? In that case, the controlled reduction is carried out. In that case, either Laplace or Birch catalyst is used, you will get propene. Then there are two ways to get alcohol against Markov rule: HBr peroxide and QHF peroxide. HBr peroxide से टर्मिनल पोजीशन पे यहाँ Br लग जाएगा, यहाँ H लग जाएगा, and Br is replaced by OH. Yeah, boron hydride method. Primary alcohol, और प्राइमरी अल्कोहल हमें पता है ऑन ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड. बहुत सारे रिएजेंट कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के लिए पीसीसी, पीडीसी, क्रोमियम ऑक्साइड 2-pyridine, कॉपर से 573, क्रोमाइल क्लोराइड एसिटिक हाइड्राइड. दिस इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन. कॉपर नाइट से हीट कर सकते हैं, लेड नाइट्रेट से हीट कर सके. इतने सारे रिएजेंट्स हैं जिससे आपको यूज कर सकते हो. तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको एल्डिहाइड के लिए कौन सा रूट लेना है और उसके लिए कौन सा रूट लेना है. Then reductive ozonolysis. In this case, you will get 2C double bond. Or ozone is added in the same way as in case of alkene, and the only difference is in this case the carbon-carbon single bond is there. In case of alkene, there is no carbon-carbon bond. Bond fission takes place in the same way. This oxygen is attached with water, gives hydrogen peroxide, HCO, C single bond C, O and H. बैलेंस पूरी करने के लिए एल्डिहाइड यानी कि एसिटिलीन चेंजेस टू ग्लाइकोसिल और इथेन डायल. इसी ढंग से प्रोपाइन में क्या डिफरेंस आया? H की जगह CH3 आ गया, तो आपको क्या मिला? 2 कीटोन, 2 C डबल बॉन्ड हो गया. एल्डिहाइड और कीटोन, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड. इसी ढंग से यहाँ पे क्या देख रहे हो? दोनों तरफ CH3 यानी बोथ हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय CH3.
ब्यूटेन 2,3 डायोन। तो हमें मेथड समझ में आना चाहिए। कंपाउंड को दिया जा सकता है, मैंने जानबूझ के साइक्लिक कंपाउंड ले लिया, उसी ढंग से एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या ओजोन ऐड हो गए और आपको क्या मिल गया, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डायोन। इस ढंग से हमने कुछ अल्काइंस से मेथड ऑफ प्रिपरेशन हियर टू प्रिपेयर एल्डिहाइड कीटोन्स। नाउ लेट अस टेक अप फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन्स। क्या करेंगे, पहले KOH एक्वस NaOH एक्वस यूज करेंगे, X इज रिप्लेस्ड बाय OH। तो क्या बना, टर्मिनल पोजीशन पे हाइड्रोजन था, प्राइमरी अल्कोहल बना। फिर बहुत सारे रिएजेंट बताए गए हैं, PCC PDG क्रोमियम ऑक्साइड क्लोरिड, देन क्रोमाइल क्लोराइड एस्टर हाइड्रोलिसिस, कॉपर से ट्यूब में से पास कर सकते हैं, 573 कॉपर नाइट्रेट से हीट कर सकते हैं, लेड नाइट्रेट से हीट कर, बहुत सारे रिएजेंट है जिससे आपको ये एक H ले जाएगा, एक जिस कार्बन से गया वो H चला जाएगा। और यही हाइड्रोजन अगर मिडल में होगी तो नेचुरली KOH एक्वस से मिडल में हुआ चला जाएगा, क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और सेकेंडरी अल्कोहल वही एक अल्कोहलिक H तो पहले बेस कार्बन से जुड़ा हुआ है OH चलेंगे एंड गेट कीटोन्स। R and R' में भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फिनाइल, साइक्लोहेक्सेन कोई ऐसे कंपाउंड बन जाएगा। बट फॉर हायर नंबर कार्बन्स हमें पता है अल्काइल हैलाइड्स में कर चुके हैं, साइनाइड मेथड यूज करते हैं, साइनाइड में KCl NaCl यूज करें तो क्या बना, X की जगह Cl, एक कार्बन तो बढ़ गया। अगर एल्डिहाइड बनाना है तो स्टीफन रिएक्शन यूज करेंगे। स्टीफन रिएक्शन में क्या यूज करेंगे, टेन एंड कंसंट्रेशन कंट्रोल रिडक्शन के लिए। यहाँ पे ये रिएजेंट है, लिंडलास कैटलिस्ट नहीं है तो सीटेबल बॉन्ड है। तो एज ए रिजल्ट हम क्या देखेंगे, एक पाई बॉन्ड का ऑप्शन होगा, एक H इसको मिल जाएगा, एक H इसको मिल जाएगा। अल्टीमेट पर बेसिक नेचर में HCl अडप्ट हो गया। अल्टीमेट हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर ऐड किया, यहाँ पे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, O and H2 RCHO, H2 इसको मिला तो NH3 प्लस HCl NH4Cl, तो आपको एल्डिहाइड मिला, एक कार्बन बढ़ गए। मिथाइल है तो इथेनॉल, प्रोपाइल है तो ब्यूटेनॉल, एक कार्बन बढ़ जाएगा। और अगर कीटोन बनाना है तो स्टीफन रिएक्शन से हो जाए, ग्रिजनाट रिएजेंट यूज करें। जितने भी और एडिशनल कार्बन चाहिए, एक कार्बन तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, और जितने कार्बन चाहिए वैसे कार्बन का ग्रिजनाट। अब एक और कार्बन चाहिए तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, 2 कार्बन चाहिए, इथाइल मैग्नीशियम कार्बन, तो दैट डिपेंड्स ऑन द कन्वर्शन। तो क्या हुआ, कार्बन को R' मिल गया और नाइट्रोजन को MgX, एंड देन हाइड्रोलिसिस O and H2 RCRH डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन बना और MgX NH2 इसका बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ब्रोमोमीथेन टू इथेनॉल, ब्रोमोमीथेन 1 कार्बन। अगर तो ब्रोमोमीथेन टू मिथेनॉल होता फिर तो क्या करते हैं, NaOH एक्वस QH एंड देन PCC PDC कर देते हैं। लेकिन ब्रोमोमीथेन टू इथेनॉल कार्बन बढ़ानी है तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, KCl NaCl, और उसके बाद स्टीफन रिएक्शन यूज किया। लेकिन अगर ब्रोमोमीथेन टू ब्यूटेनॉल बनाना है तो नो डाउट कार्बन तो बढ़ चुकी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 है, और हमें कितने चाहिए 4, तो 2 कार्बन वाला ग्रिजनाट रिएक्शन ले लिया। और उसी ढंग से ग्रिजनाट रिएक्शन का R तो इस कार्बन को अटैच हो गया, MgBr इससे जुड़ गया, देन हाइड्रोलिसिस। यही अगर प्रोपेनॉन होता तो यहाँ मिथाइल लगते, यहाँ मिथाइल लग जाता, यहाँ मिथाइल लग जाता, प्रोपेनॉन बन जाता है। तो ये तो एग्जामिनेशन में कन्वर्शन बताएगी क्या होगा। नेक्स्ट मेथड हमारा आता है फ्रॉम अल्कोहल, जो कि हम पहले भी जगह जगह आ चुका है।
प्राइमरी अल्कोहल है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का पीसीसी, पीडीसी, क्रोमियम ऑक्साइड 2 pyridine जिसे कॉलेज एजेंट कहते हैं, ये यूज करोगे तो इटार्ड रिएक्शन, ETA-RD रिएक्शन, इस केस में इटार्ड रिएक्शन हो जाएगा, ETA-RD। अगर ये रिएजेंट यूज करते हो, कॉपर नाइट्रेट से हीट कर सकते हैं, कॉपर ट्यूब में से पास कर सकते हैं, पैसे लेड नाइट्रेट यूज कर सकते हैं, इसको हमें पता है कॉलेज रिएजेंट बोलते हैं। कोई भी रिएजेंट यूज किया जा सकता है, यू विल गेट इट। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो दोनों ये वही हट जाएंगे, इन्हीं रिएजेंट से आपको कीटोन मिलेगा। कुछ कभी कभी नेम रिएक्शंस आ जाती हैं। हाँ सॉरी, एक हमने हलाइड्स तो कर लिए, लेकिन जेम डाइहाइड्स एक तो वो करेंगे, और एक ये अभी अल्कोहल की कंटिन्यूटी में दो नेम रिएक्शंस हैं, उनको हमें करना है। वो कौन कौन सी है नेम रिएक्शन? एक तो है बॉर्न ओपन यस रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम एसीटोन एंड सेकेंडरी अल्कोहल यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटाइल, अल्युमिनियम ओ। तो पहले टर्शियरी ब्यूटाइल बनाएंगे। टर्शियरी ब्यूटाइल कैसे बनेगा? CH3 थ्राइस, या टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया या टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। और अल्युमिनियम के वैलेंस से 3 है तो यहाँ 3 हो गया। इसका क्या नाम है? एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड, but be careful, R and R dash maybe same, maybe different, but should be higher than methyl group. इंटरचेंज हो जाएंगे, क्या बन जाएगा? R C double bond O R dash plus CH3 CHOH, ये आपस में इंटरचेंज हो गया। इसे हमने बोल दिया बॉर्न ऑक्सियस रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसका एग्जैक्टली रिवर्स कहलाता है मर्विन ऑन्ड्रॉस वैरले रिएक्शन। कभी कभी वैलेंस नहीं बोलते, बिल्कुल इसका अपोजिट। जो प्रोडक्ट है वो हम रिएक्टेंट लें। लेकिन कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिया था? अल्युमिनियम टर्शियरी ऑक्साइड, और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है तो अल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो पहले तो आइसोप्रोपाइल बनाएंगे, यह बन गया आइसोप्रोपाइल या आइसोप्रोपोक्साइड। वैलेंसी अल्युमिनियम की 3 है तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, तो यह बन गया अल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। इंटरचेंज क्या बनेगा? RCHOH RH plus CH3 C double bond O CH3। एक यहाँ पे हाइलाइट्स में हमने
एक मेथड छोड़ दिया, उसको जहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। फ्रॉम जेम डायलाइट्स, फ्रॉम जेम डायलाइट्स, जेम is same carbon, no weak or isolated, only gem डायलाइट्स। इस केस में अगर तो ये हेलोजन टर्मिनल पोजीशन पे होंगी तो केवल चेकोस एंडो चेकोस यूज करेंगे, वही CH OH लगेगा। लेकिन हमें पता है सेम कार्बन कैन नॉट हैव मोर देन वन अल्कोहलिक ग्रुप, इस वजह से ये क्या हुआ, अनस्टेबल, दिस विल लूज वाटर एंड गिव्स एल्डिहाइड, RCHO एल्डिहाइड। ये होगा जब टर्मिनल पोजीशन पे, चाहे 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन, इससे कोई मतलब नहीं, साइक्लिक है या साइक्लिक। और यही अगर हैलोजन्स मिडल में होगी, एक्सेस में यूज करेंगे क्योंकि डबल यूज होगा, तो यही OH मिडल में लग जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो वही रहेगी, प्रॉब्लम क्या रहेगी कि सेम कार्बन हैज 2 अल्कोहलिक ग्रुप, एक ही अल्कोहलिक ग्रुप लग सकता है, तो दिस विल लूज वाटर और क्या बन जाएगा, R। और इस ढंग से आपने आज अल्कीन से, अल्कोहल से और हैलाइड से एल्डिहाइड कीटोन्स बनाए। और नेक्स्ट टाइम हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।